Okay, first one is eligibility of taking input tax credit. Now, the rule is against output tax liability. We are eligible to take input tax credit, but we have to follow certain rules and regulation. That is the conditions for taking the input tax credit. Hmm? Now, for example, Mr. K of Calcutta is selling goods to Mr. C of Chennai, and Mr. B, being the buyer of the goods, is eligible for, sorry, इधर Mr. C चाहिए. Mr. C, being the buyer of the goods, is eligible to claim IGST as credit for purchases based on the tax invoice of Mr. K of Calcutta. तो उसके हिसाब से वो क्रेडिट ले पाएगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. फर्स्ट, Mr. K will upload the details of all the tax invoices issued in GSTR1. GSTR1 में आप क्या करोगे, पूरे डिटेल्स दोगे कि कितना कितना आप लोगों ने टैक्स इनवॉइसेस इशू किया है. Secondly, the details with respect to sales to Mr. C will auto-populate or get reflected in GSTR2A. The same data will be pulled when Mr. C will file GSTR2. That would be considered as details of outward supply. Then Mr. C will then accept the details that the purchases has been made and reported by the seller correctly, and subsequently the tax on purchases will be credited to electronic credit ledger. So that means it's a verification. There is one more chapter called matching concept. So matching concept is nothing but it is purely based on this input tax credit chapter, that when I am supplying goods to a customer, then if customer wants to take the input tax credit, then what should happen is ideally I should issue him a tax invoice. Then I should file the return GSTR1 that will reflect that what is my outward supply, and whatever is my outward supply to a registered person, then that person or customer is eligible to take the input tax credit against it. So that will be treated as a input tax credit for the buyer. Then ITC is an integration of goods and services. Now, since the GST is charged both on goods and services, the input tax credit can be availed on both goods and services except those which are on the exempted or negative list. Input tax credit is allowed on capital goods also. Now, that is the best advantage of GST, that in case of earlier mechanism, the ITC for capital goods was not completely made available immediately. It was allowed in phases. तो थोड़ा थोड़ा करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था. बट अभी उन्होंने क्या कर दिया, whether it is stock or whether it is capital goods, for both of them you are eligible for the input tax credit. अभी उन्होंने और कंडीशंस दिया कि क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट. तो आपके पास मतलब आपके रिकॉर्ड में आई विल जस्ट कीप अंडरलाइन, वैभव लाइन मिटा दे. He is in possession of tax invoice or a debit note issued by the supplier. That is the first and most important point, कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कौन से बेसिस पे आपको आईटीसी क्लेम करना है. Then he received goods or services or both. Now this is important that आपको goods या services receive हुआ होना चाहिए. तो अगर goods मिला नहीं है या फिर services मिला नहीं है, then ideally you are not eligible for taking any input tax credit. तो आपको उसका ITC claim करने के लिए नहीं मिलेगा. Then हाँ, जब भी हम लोग बात करते हैं कि goods received on installment basis की, या फिर गुड्स रिसीव्ड और सर्विसेज रिसीव्ड की, तो तभी अगर आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा गुड्स का, तो तभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि यस दैट एसएससी इज एलिजिबल फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. फॉर एग्जांपल, गुड्स 3 इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, तो फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम सामने वाला पार्टी तो जीएसटी चार्ज करेगा, लेकिन मैं क्रेडिट कभी ले पाऊंगा आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट. मतलब तीसरा इंस्टॉलमेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे. ऑल राइट. सेकेंडली, द क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे गुड्स रिसीव हुआ या सर्विसेज रिसीव हुआ, इज इट दैट नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने प्रोडक्ट सप्लाई किया है बी को, लेकिन बी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये प्रोडक्ट का डिलीवरी तुम मुझे मत दो,
सो बी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये प्रोडक्ट का डिलीवरी तुम्हें सी को देना है। तो ए ने क्या किया, प्रोडक्ट का डिलीवरी सी को दे दी, राइट। अभी जब भी ए ने प्रोडक्ट का डिलीवरी सी को दिया तो हैज बी रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज? टेल मी, हैज बी रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज? Yes. नो। हाँ, बी को गुड्स मिला है क्या? नहीं, गुड्स किसको मिला? सी को मिला। लेकिन एज पर हुज इंस्ट्रक्शन गुड्स आर रिसीव्ड बाय सी? दैट इज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर बी कि बी B. सबसे गुड्स सी को मिला है। तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, दैट सिंस द गुड्स आर रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ बी, that is we will consider that A is providing services to B or A is supplying goods to B, means not B. directly to B but A is supplying to C, but इंस्ट्रक्शन किसका था? अल्टीमेटली बी का इंस्ट्रक्शन था। तो हम लोग ट्रीट करेंगे कि इवन दो द गुड्स आर रिसीव्ड बाय मिस्टर सी बट इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द गुड्स आर रिसीव्ड बाय बी। तो वैसा कंसिडर करके भले ही गुड्स मिला नहीं है बी को, हम लोग कंसिडर करेंगे दैट गुड्स आर रिसीव्ड बाय बी एंड अकॉर्डिंगली you are liable for taking the input tax credit. Yes. All right. Same rule applies for services also. For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or as the case may be the services. Okay, ये हमने अभी पॉइंट देखा था, ये दो पॉइंट था कि मैंने किसी को डायरेक्शन दिया है या फिर दिस the same case can be made applicable for job worker also कि A को कुछ मटेरियल प्रोसेस करने के लिए देना है D को, D इज अ जॉब वर्कर, हाँ, एंड A ने क्या किया, डायरेक्टली गुड्स सप्लाई कर दिया D को, तो D क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके फिर गुड्स को भेजेगा B के पास। इस सिचुएशन में भी जब भी A गुड्स का सप्लाई करता है D को, at that point itself we'll consider that the goods are assumed to be supplied to B and accordingly B is eligible for taking the input tax credit. All right. Point समझा? Yes. Okay. Then, yeah. Subject to provisions of section 41, tax charged in respect of supply has been actually paid to the government either in cash or through availment of input tax credit. हाँ, इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग बात कर रहे थे कि A ने B को गुड सप्लाई किया तो उसका क्रेडिट B को मिलेगा, राइट? लेकिन B को क्रेडिट मिलने का बेसिस क्या है? तो आइडियली A should have deposited the tax liability, then only B can take the input tax credit, right? Isn't it? क्योंकि अगर A ने गुड्स को डिलीवर किया नहीं है तो हम लोग ट्रीट क्या करेंगे, सॉरी A ने अगर टैक्स पे नहीं किया है तो ऑब्वियसली B को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, दैट सिंस A is the supplier of goods and A is collecting the taxes, he should deposit tax, then only B is eligible for input tax credit. Then he has furnished return under section 39 जो हमने देखा GSTR 1, provided where the goods are invoiced are received in lots and installment, the credit is available on last installment receipt. हाँ, मतलब जब भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तभी हमने पॉइंट देखा था कि जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तभी आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसिडर करने मिलेगा। Now next is the most important point, provided further that where the recipient fails to pay the supplier of GST other than supplies on which the tax is payable under RCM, the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoices by the supplier, an amount equal to ITC will be added up to the output tax liability.
मतलब इसका सिंपल सेंटेंस इसमें बात करना चाहे तो ए ने बी को अगर सर्विस दिया तो ये क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, फिर बी उसका पेमेंट कर देगा। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज बी हैज टू रिलीज पेमेंट टू मिस्टर ए, बट विद इन हाउ मच टाइम, he should be paying the amount within a period of 6 months, एंड 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, cancel out हो जाएगा, because your time of 6 months has been lapsed and thereafter you are not eligible for taking input tax credit. Are you understanding this? Yes. Yes. एंड हाँ, रूल वाइज ऐसे हुआ कि अगर बी ने 6 मंथ्स के बाद पे नहीं किया, हाँ, तो क्या होगा, 6 मंथ्स के बाद जितना मैंने आईटीसी लिया है उतना पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। एंड वो अमाउंट रिवर्स होने के बाद अगर फ्यूचर में हम लोगों ने अमाउंट पे कर दिया तो देन वी कैन से दैट वी आर एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी। तो उस केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का परमिशन मिल जाए, वापस मिलेगा। ऑलराइट। अगर 6 मंथ्स के बाद नहीं पे किया मैंने, और मतलब 6 मंथ्स के बाद मैंने 8 मंथ में पे किया, तो मेरे को 8 मंथ में मिलेगा क्या आईटीसी? यस, वही तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बाद में आप जब भी पे करोगे तभी आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। तो इंटरेस्ट भी मतलब लगेगा। फिर ये रूल का मतलब क्या हुआ कि बाद में तो मिल ही रहा है ना 6 क्रेडिट? महीने के बाद वापस रिवर्स हुआ ना, गवर्नमेंट को वापस पैसा गया ना। नहीं, मैं आईटीसी क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने पे नहीं किया इसीलिए। तो नहीं जब मैं तो, पे तो, करूंगा तो तब पे सवाल ही ही नहीं करूंगा। है, तो कुछ करने का ही नहीं फिर आप। अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है एंड 8 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर पे नहीं किया तो क्रेडिट रिवर्स होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब जब भी पे करो तो तभी मिल जाएगा क्रेडिट? ना ना ना, ऐसे नहीं। देखो रूल क्या है, ए ने बी के ऊपर इनवॉइस रेज किया, irrespective of whether B pays to A or not, B ITC इमीडिएटली ले सकता है, बराबर। हाँ हाँ, तो B ने फर्स्ट जैन को इनवॉइस दिया, फर्स्ट जैन बी ने क्रेडिट ले लिया। करेक्ट। अगर बी ने जून तक पेमेंट किया ही नहीं 6 महीने में 180 डेज तक, तो रिवर्स हो जाएगा। तो जुलाई में रिवर्स हो जाएगा, 1 जुलाई को। एंड उसके बाद सपोज नवंबर में जाके बी ने ए को पे कर दिया तो बी को नवंबर में वापस क्रेडिट मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर? यस। यस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि द कस्टमर और द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ गुड शुड पे द अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, and if it is paid within 6 months ITC will not get cancelled. If it is paid after 6 months ITC has to be reversed after 6 months, and then जब भी आप पे करोगे at that point of time आपको क्या करना है, at that point of time you will be eligible for the input tax credit, तभी आपको उसका input tax credit मिल जाएगा। Alright, आपने मार्क करके रख दिया ना सब important points? यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड अप्रोच में उन्होंने एक चार्ट में एक्सप्लेन किया है कि कभी आपको आईटीसी मिलेगा एंड कभी नहीं मिलेगा। इट इज इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक बार चार्ट देख लो तो आपको पता चलेगा कि आईटीसी किस तरीके से क्लेम कर। एक बार क्विकली चार्ट देख लो।
सर ये जो रिटर्न का फॉर्म नंबर दिया हुआ है GSTR 2 वो बराबर है क्या? अभी तो ये सस्पेंडेड है ना, मतलब फिलहाल। GSTR 1 आएगा ना? अभी तो वो सस्पेंडेड है, हाँ जिस सर। हिसाब से ट्रीट करना। पहले वो अलग अलग फॉर्म्स था, मतलब रूल वाइज हाँ अभी सर। तो उन्होंने वो वैसे ही रखा है, सिर्फ ओनली थिंग इज दे हैव मॉडिफाइड द प्रोसेस, दे आर सेइंग इट कि GSTR 1 के हिसाब से हम लोग क्रेडिट देते, एंड अभी बराबर। 2020 में वापस उन्होंने नया रूल्स लाया, वो भी हमें सीखना है बात। ओके। सर ये GSTR 1 तो जो अपना सप्लायर है उसको उसको उसके उसको लिए। देना पड़ता है, पहले कैसे था, सप्लायर 1 भरेगा, रेसिपिएंट 2 भरेगा, एंड फिर वो एक दूसरे के साथ मैच करना पड़ेगा। यस, अभी तो 2A से मैच हम्म करना पड़ता है। हम्म। क्या सस्पेंड किया सर? GSTR 2 अभी नहीं करना है ना। अच्छा हाँ, मतलब अभी जो आया था वही ना, बीच में आया था अभी। क्या है? तो 2 अभी आया था ना, पहले नहीं था 2। GSTR 2, हाँ 2 पहले नहीं था ना। पहले से ही है 3B 2। और 1, 3B और 1 ही फाइल करते थे ना अपन तो। 2 तो पहले से ही है ना ब्रो, जब से अपन लास्ट टाइम GST सीखा था तभी था 2, मतलब 2 था तभी। तभी भी नहीं था शायद से करना फाइल। अभी 2B कुछ तो भी है, 2B भी है।
ओके चलो आपने देख लिया चार्ट। हाँ तो इसमें मेन क्या है पॉइंट देखो, पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, दैट मींस यू शुड हैव अ इनवॉइस। हाँ सेकेंडली गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड directly to you or through your agent or through third party or as per your instruction किधर भी दिया रहेगा वो। थर्ड इज द टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड, मतलब टैक्स पे होना चाहिए। एंड फोर्थ इज द रिटर्न शुड बी फाइल्ड, मतलब जो सप्लायर है वो GSTR1 फाइल करेगा एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। एक्चुअली द प्रोसेस वाज लाइक दिस कि GSTR1 फिल अप करेंगे तो सामने वाली पार्टी के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में वो जाके दिखेगा। तो यहाँ पे GSTR1 इज एज ऑफ टुडे इट इज मैंडेटरी एंड इट इज एप्लीकेबल। तो GSTR2 में जो रिफ्लेक्ट होने वाला था वो अभी तक तो वैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन कंसीडर। एंड सेकेंडली एट दैट टाइम देयर वाज रूल। हाँ मतलब इनिशियली उन्होंने रूलिंग कैसे बनाया था कि मैं जब भी सप्लाई करूंगा, सपोज आई एम सप्लाइंग गुड्स टू मिस्टर एक्स, तो जब भी मैं रिटर्न फाइल करूंगा तभी मिस्टर एक्स के रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट होगा। एंड अगर हम दोनों का फिगर्स एक दूसरे से मैच होता है तो ही वो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा। बट सब्सिक्वेंटली दे ऑब्जर्व कि अगर मैंने डिले फाइल किया रिटर्न तो सामने वाली पार्टी का तो ITC चला जा रहा है ना। एंड फॉर हाउ मेनी डेज दे विल कीप अ ट्रैक और हाउ मेनी मंथ्स दे विल कीप अ ट्रैक कि मैं कभी रिटर्न फाइल करता हूँ वो कभी क्रेडिट ले पाता है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने अभी स्ट्रीमलाइन कर दिया कि आप क्रेडिट ले लो, अल्टीमेटली दे विल चेक कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट का एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। या इसमें अभी दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था कि अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिला है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब भी मिलेगा तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एंड लास्टली पेमेंट 180 डेज के अंदर होना चाहिए। 180 डेज के अंदर पेमेंट हो गया तो आपको पूरा ITC मिलेगा, वरना ITC नहीं मिलेगा। ओके क्वांटम ऑफ क्रेडिट, like we discussed at the beginning कि earlier tax mechanism में there was a difference कि ITC लेना है capital goods का and ITC लेना है general goods का, उसमें फर्क था। But as far as this mechanism is concerned, there is no distinguish between capital goods and regular goods. दोनों के लिए आपको क्या होगा, similar way से input tax credit permission मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रीट करेंगे quantum of credit both for capital as well as regular goods, दोनों के लिए सेम रहेगा। देन टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। अभी देखो कभी कभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने गुड सप्लाई किया तो तभी मैं टैक्स इनवॉइस रेज करूंगा। बट कभी कभी फॉर शोइंग एक्स्ट्रा चार्जेस, शोइंग इंटरेस्ट, शोइंग पेनल्टी और शोइंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल सेंड टू द कस्टमर, तो उसके लिए हम लोग डेबिट नोट रेज करेंगे। तो जब भी डेबिट नोट रेज होगा या फिर इनवॉइस रेज होगा, दोनों हम लोग ट्रीट करेंगे दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। एंड वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से the second party can take the input tax credit. One more point which we have to understand here is no credit of tax when advance is paid. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को सर्विसेज के लिए एडवांस पेमेंट किया या गुड्स के लिए एडवांस पेमेंट किया तो मुझे क्रेडिट कभी मिलेगा, एज एंड व्हेन द सर्विसेज आर रिसीव्ड और एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड। तो सप्लायर पेमेंट पहले ही कर देगा लेकिन हमें क्रेडिट मिलते वक्त थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भी आपको सर्विसेज मिलेगा तभी आप लोगों को क्या करना है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर देना है। ओके तो देयरफॉर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, अगर एडवांस अमाउंट मिला आपको जिसके लिए आपको सर्विस या गुड्स अभी तक नहीं मिला तो उसका आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, चला जाएगा। Yeah, then there is an important aspect about receipt of goods and services कि goods and services आपको मिलना भी चाहिए। हाँ तो कभी कभी क्या होता है, जब भी मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम सप्लाइंग पेट्रोल, तो पेट्रोल जब भी सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से सर्टेन पेट्रोल में गेट इवेपोरेटेड, या फिर इफ आई एम सप्लाइंग सर्टेन पेरिशेबल आइटम्स, उसमें से थोड़े थोड़े पेरिशेबल आइटम्स मतलब मुझे पता है कि वो नुकसान हो जाएगा उसका। तो इन एनी विच केस जब भी हम लोग बोलते हैं कि अपना नुकसान होगा या फिर प्रोसेस लॉस होगा, तो जब भी ये नुकसान होने वाला है, तो प्रोसेस लॉस होने वाला है, वी हैव टू आइडेंटिफाई how much is the process loss and how much is loss during transit। तो यहाँ पे अगर प्रोसेस लॉस रहेगा तो हम लोग उसको वेदर इट इज नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस,
हम लोग उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। लेकिन अगर लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ रहेगा तो वो केस में नॉर्मल लॉस है तो आईटीसी अलग, बट अगर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हुआ तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि इफ आई एम परचेसिंग लाइक इफ आई एम ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोल, उसका मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो उसमें जो नॉर्मल लॉस होने वाला है कि पेट्रोल ट्रांसफर करते वक्त सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल विल गेट इवेपोरेटेड, बट उससे ज्यादा कुछ ट्रांसपोर्ट लॉस हुआ या फिर उससे ज्यादा कुछ लॉस हो गया तो abnormal loss during transit is not permitted। हाँ, बाकी पूरा का पूरा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का परमिशन मिल जाएगा। तो ये चारों याद रखने से अच्छा एक ही याद रखो, abnormal loss during transit will not be eligible as will not be eligible for taking input tax credit। All right, okay। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में जैसे जिस हिसाब से दिया है कि ये लॉस प्रोसेस लॉस रहेगा तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट परमिशन देना है, एंड अगर लॉस इन ट्रांजिट रहेगा विच इज एन एबनॉर्मल लॉस, उसका हम लोग आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से डील करना है। चेक क्वेश्चन नंबर 1।
बताओ, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले का तो नो है, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव 1 जैन को हुआ है, तो 15 नवंबर और 20 को नहीं कर सकते। पहला तो सी कैन अवेल क्रेडिट ऑन 15th और 20th नवंबर, आंसर इज नो, बिकॉज जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा दैट इज 1st ऑफ जैन, तभी आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। Second, C Limited, is C Limited eligible for ITC? Okay, so when on 1st Jan. Okay, how much credit is allowed to C Limited? Can you tell me how much credit is allowed? 179,640. 40. Yes. 179,640. How you calculated? सर वो abnormal loss वाला नहीं मिलेगा। Yes, तो एक काम करो, 10,000 में से 20 लेस कर दो, तो आ गया 9,880. 9,992. Sorry, 9,980 into प्राइस कितना है 100, तो ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आएगा जो रहेगा 9,98,000, इसके ऊपर जीएसटी कितना आएगा एट 18%, कितना आएगा 179,640. वन 179,640 करेक्ट। 179,640 इतने का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं हम लोग। तो सी लिमिटेड चेन्नई कितना क्रेडिट ले पाएगा 1,79,640। ऑलराइट, पॉइंट समझा? Yes. ओके, Yes sir. अभी ये जो दो कंडीशंस आगे वाला था कि अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में गया तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा तो आईटीसी मिलेगा, एंड सेकेंडली जब भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, सॉरी हाँ, सेकेंडली क्या है, या टैक्स इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, तो अपने टैक्सेस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना इज अनदर इसेंशियल कंडीशन। इफ यू हैवंट डिपॉजिटेड टैक्स टू गवर्नमेंट देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये दो बेसिस पे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर द सेम। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो।
सॉरी, ये अभी तक हुआ नहीं अपना पॉइंट। ये पॉइंट बाद में होगा ना, तभी करते हैं हम लोग। ये सम गलत जगह पे आ गया। ठीक है, जब ये पॉइंट होगा तभी मैं बताता हूँ आपको। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल डिस्कस। Okay, next point is with reference to returns. Return must have been filed and payment to the supplier has been made. And ये रिवर्सल ऑफ क्रेडिट का हमने रूल देखा। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट का रूल आपको समझा है, तो वही प्रोसेस उन्होंने इधर नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि हाउ दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्सल विल टेक प्लेस। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक 1 जन का आपको एग्जांपल दिया था, याद है कि 1 जन को गुड सप्लाई किया, उसके बाद सामने वाली पार्टी ने इमीडिएटली क्रेडिट ले लिया, लेकिन 6 मंथ्स तक पेमेंट नहीं दिया, तो 6 मंथ्स बाद क्या होगा, रेसिपिएंट को आरसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एंड सब्सीक्वेंट पीरियड, मतलब जब भी आप पे करोगे तभी आपको वापस उसका क्रेडिट क्लेम करना है। तो वही प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे ये पेजेस में एक्सप्लेन किया है। तो एक मिनट, ओके, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेल, फर्स्ट विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Messrs A Limited of Alua, Kerala receives an input service from B Limited of Bangalore, who raises the invoice for supply of service on 17th December 17 and availed credit on the same date. उसने immediately credit ले लिया। Find the time of find the time limit within which A Limited is required to pay the bill amount inclusive of tax to the supplier of service. Also explain consequences if the payment is not made within the date mentioned in the a second provision to section 16(2), and recredit is allowed if the payment is made to the supplier after expiry of the time period as mentioned in second provision. तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? पहले का आंसर क्या आएगा, कब तक पेमेंट करना चाहिए? Within 180 days. 180 विद इन days. 180 डेज। तो 180 डेज हमें 17 दिसंबर के बाद काउंट करना है। फिर उस दिन तक पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन के बाद अगर पे किया तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। हाँ, मतलब उतना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भरना पड़ेगा। बट सब्सिक्वेंटली जब भी आप पे करोगे 6 महीने के बाद, सपोज और 4 महीने बाद पे कर दिया, तो एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। बताओ उनका कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट है या नहीं है? इज द कोर्स ऑफ एक्शन राइट और रॉन्ग? मतलब वो 180 डेज वाला कंडीशन पे फुलफिल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो, 180 डेज का कंडीशन तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, भले आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दो, लमसम पेमेंट दो, या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दो। लेकिन कौन से केस में नहीं होगा? जहां पे आप सेम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ब्रांचेस के बीच में डील कर। हाँ, ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है मुझे बताओ, सोच के बताओ।
ऑर्गेनाइजेशन। सेम सेम ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के दो ब्रांचेस में है, तो डू यू थिंक दे विल पे टू ईच अदर? नो। नो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वो एक दूसरे का लाइबिलिटी क्या करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट स्क्वायर ऑफ कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। हाँ, मतलब सपोज एक ब्रांच मुंबई में है, एक कलकत्ता में है, तो एक दूसरे का ट्रांजैक्शन, एक दूसरे को जो गुड्स सप्लाई करते रहेंगे, अल्टीमेटली पेमेंट कितना करेंगे, दोनों का जो कॉमन अमाउंट रहेगा उतना ही आप पे करोगे, राइट? बाकी पूरा का पूरा अमाउंट आप पे नहीं करोगे। तो इसके लिए जब भी हम लोग पेमेंट करने वाले हैं विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इवन दो अभी यहाँ पे जीएसटी क्यों आ रहा है, बिकॉज दो अलग अलग स्टेट में है, इसके लिए दोनों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, एंड दिस ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन, एंड इसके लिए यहाँ पे हम लोग जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। बट अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आना नहीं चाहिए था अगर सेम एंटरप्राइजेस विद इन द स्टेट होता तो। इसके लिए यहाँ पे 180 डेज का कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, तो याद क्या रखना, व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ द सेम कंपनी और टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ द सेम पैन, देन 180 डेज का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस। यस सर। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का सिंपल रूल याद रखो, मैं ये इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मतलब सर कभी भी पे करो अगर सेम एंटरप्राइज है। यस, सेम एंटरप्राइज रहेगा तो पेमेंट का कुछ कंडीशन नहीं, बाकी सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। आप 2 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो, 10 महीने के बाद करो, इट विल नॉट हैम्पर द आईटीसी। ये क्योंकि एक के पॉकेट से जाए, मेरे ही पॉकेट से एक, मेरे शर्ट के पॉकेट से एक पॉकेट से दूसरे शर्ट के पॉकेट में जा रहा है, या फिर शर्ट के पॉकेट से पैंट में पॉकेट में जा रहा है, बट अल्टीमेटली सेम कंपनी का ही है ना। ये बराबर। बिकॉज़ दो दो शर्ट तो नहीं भाई। हाँ, ओके। अभी डेप्रीसिएशन का रूल क्या याद रखेंगे, सपोज मशीनरी का कॉस्ट है 10 लाख एंड इसके ऊपर जीएसटी आया सपोज एट द रेट ऑफ 18%। हाँ, वो अगर नेट ऑफ पे लिया तो उसको इंक्लूड करो और नहीं लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, या अगर तो इंक्लूड किया आईटीसी तो लो या तो इसमें डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लो, आ एक ही जाएगा। मिलेगा ऐसा। फर्स्ट केस डेप्रीसिएशन ऑन फुल अमाउंट, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यस, आईटीसी नॉट अवेलेबल। परफेक्ट, लॉजिक समझ रहे हैं सबको? यस, बिकॉज इस पे डेप्री ज्यादा आएगा ना। इस पे फुल लिया। करेक्ट, मैं डेप्रीसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर रहा हूँ इनकम टैक्स में, तो डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे। हाँ? लेकिन ऑन इनकम टैक्स का एसेट तो अपना ही अलग है ना। क्या हुआ? इनकम टैक्स का तो अलग ही ब्लॉक ऑफ एसेट वैसा होता है ना, लेकिन सर यस यस, लेकिन तो उधर वैल्यू देखो, अगर वैल्यू मैंने 11,80,000 लिया, मतलब मैं हमेशा डेप्रीसिएशन किस अमाउंट पे निकालूंगा? 1180। यस, तो इन शॉर्ट मैंने जीएसटी के अमाउंट पे भी डेप्रीसिएशन निकाला ना। लेकिन सर एक्चुअल में तो इनकम टैक्स में वो जो रूल है उसके हिसाब से ही, जो ब्लॉक के हिसाब से ही मिलेगा ना। नहीं नहीं, वो करेक्ट है, लेकिन अगर मैंने 10 लाख पे लिया एंड 11,80,000 पे लिया, उसमें डिफरेंस है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि मैं ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से डेप्रीसिएशन लूंगा 102%, लेकिन ब्लॉक ऑफ एसेट में डालते वक्त शुड आई पुट 10 लाख or should I put 11,80,000? That is the question. Are you understanding? यस Yes. तो 11,80,000 अगर मैंने ब्लॉक में लिया तो आईटीसी नॉट अवेलेबल, एंड अगर 10 लाख लिया तो आईटीसी इज अवेलेबल। आ रहा है पॉइंट समझ में? यस, वेरी गुड। चाहिए तो ये एग्जांपल लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट बाय द टैक्सेबल पर्सन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो वो एनुअल रिटर्न का कंडीशन क्या हम लोग देखते हैं, बट पहले ये एग्जांपल लिख लो तो आपको ये डेप्रीसिएशन का फंडा क्लियर हो जाएगा।
चलो ये पॉइंट क्लियर। ये सब पॉइंट आपको एक साथ आईटीसी में कंसिडर करना पड़ेगा कि कभी कभी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कभी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। Okay. So the next point which we were discussing about was the time limit up till which you can file the till which you can claim the input tax credit. हाँ, तो वहां पे पॉइंट क्या दिया है देखो, time limit for availment of ITC can be up to filing of return under section 39 for the month of September following the financial year in which such invoice pertains, and second is or filing of annual return whichever is earlier. हाँ, मतलब for example हम लोग बात करें we have to claim credit of a transaction in March 2020, मार्च 2020 की ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन का आईटीसी हम लोग कब तक क्लेम कर सकते हैं? 20th अप्रैल। अभी देखो हाँ आइडियली नेक्स्ट मंथ में ही करना चाहिए, बट अगर मैं भूल गया तो मैं कब तक इसको क्रेडिट मतलब कब उसका क्रेडिट में ले पाऊंगा, तो उसके लिए आपको कंसिडर करना है, या उसके लिए आपको कंसिडर करना है दैट रिटर्न कैन बी क्लेम्ड टिल सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब सितंबर नेक्स्ट ईयर का कौन सा है? 2000 ऑब्वियसली। इसका रिटर्न सितंबर मंथ का रिटर्न हम लोग कब तक फाइल करेंगे बताओ? अक्टूबर 20th। यस, तो 20th अक्टूबर तक हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे। एंड दूसरा चीज डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? अभी जनरली ड्यू डेट इज 31st of December 2020, but that keeps changing and that keeps extending because of certain issues like last year कोविड हुआ, उसके वजह से बाकी सब प्रॉब्लम्स हुआ, तो हर एक सिचुएशन में ये पीरियड क्या होते जाता है, बदलते जाता है। हाँ, तो आपको देखना है कि एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, फिर एनुअल रिटर्न कभी फाइल हुआ, या सितंबर का रिटर्न हम लोग जब भी फाइल करेंगे तभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि सितंबर का रिटर्न कभी आएगा, उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये क्रेडिट हम लोग कब तक क्लेम कर पाएंगे। तो ये क्रेडिट हम लोग क्लेम कर पाएंगे टिल एनुअल रिटर्न दैट इज 31st of December और till 20th of October 2020 whichever is earlier, राइट? तो अपने एग्जांपल में हम लोग कब तक क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे? तो ये डेट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, सर अभी 1920 का 1 मार्च है ना? नहीं, हाँ हाँ बराबर, वो एक्सटेंड जो हो के अभी तक आया है, अभी आया है। 28 फेब का था, फिर 31st हुआ ना? 31st मार्च के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए वो डेट फिक्स नहीं रहता, इसके लिए मैंने आपको जनरल डेट बताया कि जनरल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 31st of December of next year. So accordingly we have considered the calculation. Yeah. All right.
सर ये जो क्लेम करेंगे ये मार्च मंथ के इसमें मतलब ऐसे पीछे जाके क्लेम करेंगे या नहीं, कब? क्योंकि देखो रूल क्या है, कैन यू रिवाइज द जीएसटी रिटर्न्स, बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, जीएसटी रिटर्न रिवाइज तो नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रेश रिटर्न, अभी के रिटर्न में अगर मैं लास्ट कोई महीने का दिखाने जाऊं तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगा, करेक्ट। वो अलाउ नहीं होगा सिस्टम में। तो इसके लिए दे हैव कंसिडर्ड कि ये क्रेडिट आपको कभी मिलना है, मतलब ये क्रेडिट आपको कभी लेना है, तो ये क्रेडिट आपको लेना है टिल दिस डेट, मतलब ये सितंबर के रिटर्न तक या एनुअल रिटर्न तक, तभी तक आप कभी भी वो क्रेडिट क्लेम कर लो, सो दैट इट विल नॉट गेट एलोंगेटेड। बहुत बार कैसे होता है, हम लोग कोई क्रेडिट लेना भूल गए तो 2 साल 3 साल बाद लोग क्रेडिट लेने आते हैं, गवर्नमेंट को वो नहीं चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि कब तक आप क्रेडिट ले पाओगे, तो उन्होंने डेडलाइन डाल दिया कि चलो सितंबर 20 का रिटर्न फाइल करने तक या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, ये दोनों में से जो भी फर्स्ट रहेगा उस दिन तक आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सितंबर तक कोई भी किसी भी महीने के रिटर्न में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ना वो? यस, उसमें सिर्फ हम लोग जो भी इनवॉइस डेट दिखाते हैं ना, तो वो मार्च 20 का है, हाँ बरोबर। तो इंडिकेट होगा इनडायरेक्टली कि मैं लास्ट ईयर का क्रेडिट अभी क्लेम कर रहा हूँ। एंड अगर वो डेट चला गया तो फिर डिपार्टमेंट आपको वो क्रेडिट अलाउ नहीं करेगा, फिर कैंसिल आउट कर बरोबर। देगा। सर ये ऑडिट एडजस्टमेंट कुछ रहता है वो है क्या ये? यस, ये ऑडिटर आके वेरीफाई करेगा। अच्छा। ऑलराइट, ये पॉइंट समझ में आया सबको कि टाइम लिमिट फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, अप टू सितंबर मंथ, नेक्स्ट ईयर का सितंबर का रिटर्न जब तक जाएगा, मतलब ये फिक्स डेट रहेगा 20 अक्टूबर। सिर्फ आपका एनुअल रिटर्न का डेट क्या होगा, चेंज होते रहेगा, तो एनुअल रिटर्न का डेट रहेगा 31 दिसंबर, उस हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे 31 दिसंबर। ओके, ओके, एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। Question number 5. Messrs X Limited purchased for 2 lakh white tax invoice 12 dated 1st December 17. X Limited has submitted return for financial year 17-18 on 15 September 2018 and September return has been filed on 19th of October. Find the time limit within which ITC can be made available. And if X Limited wants to take credit on 30th September 18, can they take it? तो दोनों का आंसर सोच के मुझे बताओ क्या आएगा। सर 15 सितंबर 2018 तक लास्ट डेट है उसका लेने का, बिकॉज एनुअल रिटर्न उसने जल्दी फाइल कर दिया। यस, अभी देखो एनुअल रिटर्न का डेडलाइन भले दिसंबर है, लेकिन मैंने कभी फाइल किया 15 सितंबर 18 को रिटर्न फाइल कर दिया, बराबर। एंड सितंबर मंथ का रिटर्न है, ये कब तक फाइल होगा, दिस विल बी फाइल्ड बाय 20th ऑफ अक्टूबर नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे हम लोग आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं, 15 सितंबर। करेक्ट, 15th of September 2018। चलो, तो पहले का आंसर हो गया। अभी सेकंड का आंसर क्या है, कैन कंपनी टेक आईटीसी, कैन आईटीसी बी टेकन ऑन बताओ इसका आंसर दो, कैन आई टेक क्रेडिट ऑन No. दिस डेट, नो, No. करेक्ट। क्यों, बिकॉज
हमारा डेडलाइन पहले- क्या है 15/9/2018 है, तो उसके बाद अगर मुझे आईटीसी क्लेम करना है तो वो मुझे आईटीसी क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज द डेट फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज ऑलरेडी लैप्स्ड, so I cannot take the credit on 30th of September. Are you getting it? यस सर। चलो अभी 6th क्वेश्चन देख के मुझे उसका आंसर बता। सर वो एक्सेप्शन दिया हुआ है ना वहाँ पे, जो वो पॉइंट में टाइम लिमिट वाले में कौन सा 6th में? ऊपर जो, हाँ नहीं नहीं सर, टाइम लिमिट वाला जो हम लोगों ने किया था, रीड किया था अभी सेक्शन, हम्म। उसमें एक्सेप्शन है जो हम लोग रिवर्सल कर रहे हैं ना 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मैं कभी भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 साल के बाद पेमेंट किया सामने वाले को, तो तभी भी मैं आईटीसी ले सकती हूँ। Yes, that you can take any time. Correct. Correct. तो वो रिवर्सल का इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. That point is valid. हाँ ठीक है। और ये सिर्फ जो केस में हमसे मिस हो जाता है आईटीसी क्लेम करना, इनवॉइस मिस हो गया वगैरह, ऑडिटर ने कैच किया, तभी हमारे पास लिमिट है, विद इन लिमिट ही हम कर। Yes, yes. चलो अभी 6th का जवाब दो मुझे। ये तो गलत बात है ना, ये रूल काय के लिए फिर? कौन सी बात गलत है? सर मतलब अगर मैंने आईटीसी अभी क्लेम कर दिया और 180 डेज में मैंने पे नहीं किया तो मेरा रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट। फिर मेरे पास नेक्स्ट सितंबर तक का डेडलाइन होना चाहिए ना कि मैं इतने में पे करूं तो मेरे को वापस वो क्लेम करने को मिलेगा। नहीं, वो पे कभी करेंगे उसका कुछ गारंटी नहीं है ना। देखो रिवर्स हो गया मतलब क्या हुआ, इट इज एज गुड एज अ फ्रेश ट्रांजैक्शन। देखो रूल क्या है, पहले मैंने सपोज तुम्हारे ऊपर इनवॉइस रेज किया, तुमने आईटीसी क्लेम कर दिया एंड तुमने 180 डेज में पे नहीं कर दिया, मतलब तुमने आईटीसी रिवर्स कर दिया, बराबर। हाँ, अभी जब भी तुमने आईटीसी रिवर्स कर दिया तो इट इज एज गुड एज फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैंसिल्ड। हाँ, तो जब भी हम लोग पे करेंगे वो नया ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा। मतलब ये दोनों रूल साथ में एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा नुकसान है। हाँ गवर्नमेंट का नुकसान है, यस। ओके, 6th पॉइंट में बताओ, 6th क्वेश्चन में बताओ। ओके, 21st जैन को उसने इनवॉइस रेज कर दिया प्लस जीएसटी एंड अंडरटुक ट्रायल रन्स एंड कैलिब्रेशन फॉर द सेम मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पास्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वेर covered in a debit note raised in May 2018, while Limited did not file annual return till October. Find a time limit within which ITC can be availed by the Y Limited. Y Limited कब तक आईटीसी अवेल कर सकता है, बताओ मुझे। मई मंथ में जो डेबिट नोट रेज किया उसके लिए कब तक टाइम लाइन रहेगा उसका? जो ओरिजिनल बिल है 180 मतलब 5 लाख रुपए का, उसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? 20 अक्टूबर 2018। यस, 20th अक्टूबर 2018। एंड जो सेकेंड इनवॉइस है मई 2018 में रेज हुआ, उसके लिए नेक्स्ट ईयर का सर। नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब उसके लिए तो 2019 हो जाएगा, बिकॉज करंट ईयर वोंट कम इनटू पिक्चर, नेक्स्ट ईयर वुड कम इनटू पिक्चर। तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर तक आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का एनुअल रिटर्न। देखो एनुअल रिटर्न हम लोग कभी फाइल करेंगे, ईयर खत्म होने के बाद। अभी अप्रैल मंथ में जस्ट ईयर शुरू हुआ तो हम लोग इमीडिएटली थोड़ी रिटर्न फाइल करेंगे। तो जो डेबिट नोट का क्रेडिट है वो हमें कभी मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। दैट विल बी मेड अवेलेबल इन so that will be made available later, matlab that would be made available in
क्या बोलते हैं अक्टूबर 20 अक्टूबर 2019, हाँ, या फिर एनुअल रिटर्न फॉर साक्षी तो कौन सा पेज नंबर देखने को बोली अभी? 139. 39 पे फर्स्ट पॉइंट. सॉरी, या तो जैन 18 का जो बिल है उसके लिए ड्यू डेट क्या आएगा? 20 अक्टूबर 2018. एंड जो सेकेंड डेबिट नोट है, मतलब मई 2018 का डेबिट नोट है, उसके लिए नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 20 अक्टूबर 2019 तक हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. यस. ऑलराइट, डेबिट नोट इधर तो सप्लायर ने इशू किया है, तो अपने लिए क्रेडिट नोट है. यस. तो सप्लायर पर्सपेक्टिव देखने का, सप्लायर के लिए डेबिट नोट है ना, सप्लायर ने हमारे ऊपर चार्ज कर दिया, तो उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे. सर नेक्स्ट ईयर कैसे जाएगा? वही ईयर हो जाएगा ना, अक्टूबर 18 डेट रहेगा ना 2018 मतलब 18-19 और जैन 2018 मतलब 17-18. हाँ समझा? समझा भी कि ये ईयर बदल गया ना, 18-19 हो गया, तो 18-19 का एनुअल रिटर्न एंड ये सब कभी जाएगा? उनका जो सितंबर का रिटर्न देखना है वो ईयर खत्म होने के बाद का देखना है ना. तो ये ईयर कौन सा होगा? सितंबर 19 का रिटर्न जो जाएगा 20 अक्टूबर को, एंड एनुअल रिटर्न जाएगा 31 दिसंबर 2019. आ रहा है समझ में? हाँ सर समझो. हम्म? डेबिट नोट का भी अपन डेट कंसिडरेशन में लेते हैं क्या सर? नहीं लेते ना, लेते इनवॉइस का ही अपन डेट देखते हैं ना. as good as invoice. देखो Okay. किस पर्सपेक्टिव से यू आर सेइंग? वो परचेसर, बायर परस्पेक्टिव. देखो डेबिट नोट रेज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? एज गुड एज अ फ्रेश इनवॉइस भेज रहा है वो. करेक्ट. तो पहला इनवॉइस 5 लाख का है एंड डेबिट नोट 1,25,000 का है, तो कैन आई अज्यूम दैट दिस डेबिट नोट इज रेज्ड ऑन 21st of Jan? हाँ, ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं क्या? हाँ क्योंकि वो इनवॉइस के इससे है ना, वो नहीं है रिलेशन में इनवॉइस नंबर probably 180 के रिलेशन में है वो, नहीं तो नहीं, फिर you वही. see you giving the reference number is different thing. कि डेबिट नोट में आपको इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देना पड़ता है. लेकिन जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसने पास्ट डिलीवरी फॉर द पोस्ट डिलीवरी चार्जेस उसने इम्पोज किया, तो ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद का जो सर्विसेज है वो तो 21 जैन के बाद ही प्रोवाइड किया रहेगा. हाँ बराबर. तो अगर वो सर्विसेज उसके बाद दिया है तो ऑब्वियसली दो सर्विसेज वर नॉट प्रोवाइडेड ऑन 21st of Jan, राइट? राइट. हाँ, तो सपोज एज अ समझा. सप्लायर मैंने डेबिट नोट रेज किया मई 2018 में, तो मई 2018 में मैंने डेबिट नोट रेज किया तुम्हारे ऊपर सपोज, तो उसका जीएसटी मैं कभी भरूंगा? फेब में भरूंगा या जून में भरूंगा? जून में, बिकॉज मैंने पहले तुम्हें बताया ही नहीं था ना कि आई एम रेजिंग सम अमाउंट ऑफ 1,25,000 ऑन यू. When it was decided, I have decided that in the month of May. So obviously May month में decide कर दिया, तो accordingly we can do the calculation and update you कि May 2018 में मैंने हाँ May 2018 में मैंने डेबिट नोट रेज किया, मतलब मुझे इसका पेमेंट कभी करना पड़ेगा? जून मंथ में पे करना पड़ेगा. तो दिस विल बी अ ट्रांजैक्शन
ऑल टुगेदर डिफरेंट। आपने जीएसटी रिटर्न्स भरा है किसी ने? यस सर। हाँ सर बरा हाँ चलो वैभव बताओ, इनवॉइस का लिस्ट दिया है रिटर्न्स में? हाँ सर। तो इनवॉइस 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 का एंड डेबिट नोट का रेफरेंस तुम एक ही साथ देते हो या उसके लिए अलग अलग कॉलम्स है? नहीं, अलग अलग कॉलम्स। यस देयर आर डिफरेंट, ये उसको कॉलम बोलते हैं। कि कॉलम मतलब ऐसा वर्टिकल कॉलम नहीं, उन्होंने अलग अलग उन्होंने मेनूज बनाए। हाँ। वन मेनू इज फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस नंबर्स, कि ये मंथ में मैंने कितना फ्रेश इनवॉइसेस रेज किया। एंड डेबिट नोट जो मैं रेज करूंगा उसका हम लोग डिटेल्स अलग से प्रोवाइड करेंगे, कि डेबिट नोट का जो लाइबिलिटी रहेगा उसका डिटेल हम लोग अलग से दें। तो डेबिट नोट में हम लोग इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देना इज वन पार्ट, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग डेबिट नोट इज एज गुड एज ट्रीटेड एज अ न्यू इनवॉइस जिसका हम लोग डिटेल देते हैं। तो डेबिट नोट जो मैंने मई मंथ में रेज किया वो मैं मई मंथ के रिटर्न में, मतलब जून में जो मैं सबमिट करूंगा उसमें दिखाऊंगा कि मैंने वाई लिमिटेड पे डेबिट नोट रेज किया है 1,25,000। लेकिन ये नोट रेज कभी होगा? इट विल बी रेज इन द मंथ ऑफ जून, सॉरी मतलब मई में रेज होगा। रिटर्न्स में कौन से जाएगा? जून के रिटर्न में जाएगा। यस। और सर ये सर्विसेज जो ट्रायल रन एंड कैलिब्रेशन का जो डिलीवरी के पहले वो सप्लायर ने किया था उसका है ना? हाँ तो उसके लिए अभी वो डेबिट नोट इशू कर अभी उसके लिए डेबिट नोट रेज कर। Yes, this can be considered as an independent debit note. हाँ, क्योंकि with reference to debit note रहता है वो क्या रहता है कि चलो मैंने पहले 1000 गुड्स भेजा लेकिन उस टाइम मैंने 1050 भेजा था या फिर कम प्राइस चार्ज किया था, उसके लिए हम लोग डेबिट नोट रेज करते हैं इंडिकेटिंग कि चलो उसके रिलेटेड ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वो कॉस्ट हम लोग अलग से कंसिडर करेंगे, मतलब दैट वुड बी गिवन सेपरेट। All right? यस सर। ओके तो अभी तक का पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yeah. अभी there is one change in the process of taking the input tax credit। जो पहले ऐसा रूल था कि आपको इनवॉइस रेज करना है फिर सामने वाला पार्टी इसके ऊपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, उसमें प्रॉब्लम होने लगा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक नया स्कीम लाया। 9/10/2019 को they have brought in new provision whereby उन्होंने important change लाया कि ITC will not exceed 20% of eligible input tax credit। तो ये eligible input tax credit कितना है या फिर ये eligible ITC क्या है या फिर हम लोग कितने extent तक उसको क्लेम कर सकते हैं, ये एंड उसके रिलेटेड अलग रूल्स जानने के लिए हमें ये प्रोविजन थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो ये पार्ट हम लोग मंडे के लेक्चर में चेक करते हैं बिकॉज दिस इज एन अमेंडमेंट, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं रहेगा 20% वाला नहीं सर पढ़ा। ये अभी 10% है क्या फिलहाल? वो अलग है, वो भी आएगा आगे पॉइंट। पढ़ा तो ओके नहीं, सर। ऑफिस में सुना है बोलते हुए। ओके ऑफिस में सुना रहेगा किसी ने बात करते। ऑलराइट, अभी तो नहीं अभी था। तक का आईटीसी का पॉइंट समझ में आ गया। तो दीज पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस सर। तो नेक्स्ट टाइम आते हो ये पॉइंट एक बार रिकैप करके आओ सो दैट जब भी हम लोग आगे जाएंगे तो पहले पॉइंट भूलने नहीं चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर आईटीसी। ऑलराइट, यस तो आज के लिए हम लोग रुकते हैं, कल आपका लेक्चर